Hello everyone, this is our third lecture of tachometric survey. In previous lecture, we have done the type 1 problem. In that, we have discussed the how to calculate the tachometric constant, that is f upon I, that is multiplying constant, and f plus d, that is additive constant. In today's lecture, we will going to discuss about the different cases of tachometric formula and the type 2 numerical. In that, we have to find the horizontal distance, vertical distance of tachometer, okay, with the different cases. Now let us start with the different cases of tachometer, and then after we will start the type 2 numerical. So first case is the line of sight is horizontal and the staff is held vertical. Okay, first, line of sight means this is axial here, that is line of sight is horizontal and staff held vertical. जो हम लोग ने staff को vertically पकड़ा है and line of sight भी क्या है, उसके बराबर horizontal है. So how to calculate D? The D means the distance between the vertical axis of tachometer and between staff, means the vertical axis of tachometer to till staff. This is called as a horizontal distance. Then how to calculate the horizontal distance? As we know, this formula is derived from the theory of tachometer. D is equal to F upon I into S plus F plus D. Okay, so where D is a distance between vertical axis of tachometer to the staff. This is, then next one is a F upon I. This is called as a tachometric constant or multiplying constant. Okay, इसका वैल्यू 100 होता है. F क्या होता है? फोकल लेंथ, एंड व्हाट इज I? लेंथ ऑफ इमेज. Now next one is a F plus D. F plus D is also the second constant of tachometer. This is called as a additive constant. Okay. Now how to calculate the RL of station? RL of station is equal to RL of line of sight minus axial hair reading. What is axial hair reading? Axial hair reading means the middle reading of the staff. This is called as a axial hair reading. Okay, now how to calculate the RL of line of sight? Okay, line of sight कैसे calculate करते हैं? RL of benchmark plus backside. RL of line of sight means ये जो हम लोग की लाइन ऑफ साइट है, ओके, और कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो स्टेशन का बेंचमार्क है प्लस बैक साइड रीडिंग, तो हम लोग को ये क्या मिलेगा? टिल हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उधर तक का हम लोग को डिस्टेंस मिलेगा. उसको हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोग ने ये वर्ड बेसिक सर्वे में सुना है. ओके, जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये हुआ फर्स्ट केस. ओके, नाउ सेकेंड केस है लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड द स्टाफ हेल्ड इज वर्टिकल. ओके, अभी इसमें क्या है? लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड मीन्स ये कहा तो हाइट पे है. ओके, और हाइट के पॉइंट का हम लोग को क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है, वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. देन हम लोग क्या करते हैं? ये एंगल आएगा यहाँ पे, जो ये टेकोमेट्रिक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके रेफरेंस से ये जो मिडल हेयर है वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? एक एंगल मिलेगा. ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस? अभी इसमें भी दो केस है. कौन से दो केस है? कि जो टेकोमीटर है एक तो फिटेड होता है विदाउट एनालिटिकल लेंस और एक फिटेड होता है विद एनालिटिकल लेंस. ये हम लोग ने जब भी थियोरी लेक्चर्स डिस्कस किए थे तभी हम लोग ने एक एनालिटिकल लेंस का पार्ट पढ़ा था. ओके, एनालिटिकल लेंस मीन्स
क्या होता है, जो f प्लस डी है, एनालिटिकल लेंस का मेन पर्पस क्या है, ये जो f प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट है उसको क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। जहाँ पे एनालिटिकल लेंस फिटेड नहीं होता वहाँ पे f प्लस डी जो एडिटिव कांस्टेंट है वो ऐड होता है, जहाँ पे फिटेड होता है वहाँ पे क्या होता है, f प्लस डी को वो ज़ीरो कर देता है। तो उसके भी दो फॉर्मूले हैं। जब भी विदाउट एनालिटिकल लेंस होता है तभी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, d इज इक्वल टू f अपॉन आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस f प्लस डी कॉस थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वर्टिकल डिस्टेंस. How to calculate this vertical distance? Vertical distance is a distance between the horizontal axis of the tachometer to the axial hair of the tachometer. Axial hair reading on the staff means जो middle hair है, okay, middle hair to this horizontal axis of tachometer तक का distance होता है, उसे हम लोग बोलते हैं vertical distance. Okay, now how to calculate the vertical distance? V is equal to f अपॉन आई इंटू एस. नाउ वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन थीटा. सो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस f प्लस डी साइन थीटा. ओके, भी ये दो फॉर्मूले हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल का, वो हम लोग कभी यूज करते हैं ये दो फॉर्मूले जब भी एनालिटिकल लेंस फिटेड नहीं होगा, मीन्स विदाउट एनालिटिकल लेंस होगा तभी हम लोग ये यूज करेंगे. ओके, दो फॉर्मूले. बी नेक्स्ट, देन टेलीस्कोप फिटेड विथ एनालिटिकल लेंस. ओके, जब भी फिटेड होगा विथ एनालिटिकल लेंस से तभी क्या होगा, ये टर्म ऑलरेडी ज़ीरो होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म आएगा ही नहीं बिकॉज ज़ीरो हो रहा है. सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? So d is equal to f अपॉन आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही पार्ट आएगा. एंड वर्टिकल डिस्टेंस v इज इक्वल टू f अपॉन आई एस साइन 2 थीटा, मीन्स इतना ही पार्ट आएगा. ओके, ये अभी न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली देंगे, जब भी टेलीस्कोप फिटेड विथ एनालिटिकल लेंस होगा तभी हम लोग को ये यूज़ करना है. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग को यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं. टेलीस्कोप फिटेड विथ एनालिटिकल लेंस न्यूमेरिकल्स में वो लोग मेंशन करते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टाइप 2 प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड RL फ्रॉम टू स्टाफ रीडिंग. ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड RL फाइंड आउट करने हैं ये टाइप के न्यूमेरिकल में. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. दिस इज एग्जाम्पल 3.7 फ्रॉम निराली. अ सर्वेयर recorded the following tachometric observation on the field work. A tachometer was set up at an intermediate point on a line PQ. Okay, दिस इज गिवन डाटा. स्टाफ स्टेशन है, स्टाफ स्टेशन एक P पे रखा है, एक स्टाफ Q पे रखा है. देन वर्टिकल एंगल फ्रॉम P इज दिस. ओके, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन M. सो वर्टिकल एंगल इज 8 डिग्री 36 मिनट्स एंड Q की तरफ है 6 डिग्री 36 मिनट्स. ओके, स्टाफ इंटरसेप्ट अभी यहाँ पे गिवन डायरेक्टली दिया है S का वैल्यू. ओके, S का वैल्यू हम इधर डायरेक्टली गिवन. S मतलब टॉप हेयर रीडिंग से बॉटम हेयर रीडिंग तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा S. सो डायरेक्टली गिवन है 2.35 S का डिस्टेंस. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी गिवन है S का डिस्टेंस. S इज इक्वल टू 2.055. ओके, एंड और क्या गिवन है, एक्चुअल हेयर रीडिंग. एक्चुअल हेयर रीडिंग मीन्स ग्राउंड से लेके मिडिल हेयर. ओके, मिडिल हेयर जो है वहाँ का डिस्टेंस होता है एक्चुअल हेयर रीडिंग. सो कितना गिवन है, फर्स्ट में देखो मिडिल हेयर से लेके ग्राउंड तक 2.105 एंड सेकेंड केस में गिवन है 1.895.
इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, h1 डिस्टेंस टिल ग्राउंड टू मिडल हेयर रीडिंग एंड ground to middle hair reading, this is called as a h2. Okay, now the multiplying constant of instrument is 100, the additive constant is 0.2 meter, and RL of station P is 420 meter. Determine the distance between PQ and RL of station Q. क्या करना है, डिटरमाइन डिस्टेंस PQ, P से Q तक का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड RL ऑफ Q, RL मीन्स ग्राउंड पे जो पॉइंट आ रहा है, ग्राउंड पे कितना मीटर मीन सी लेवल से ग्राउंड कितने मीटर पे है वो फाइंड आउट करना है. तो RL ऑफ स्टेशन Q फाइंड आउट करना है. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट भी क्या करते हैं, केस 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेशन P. ओके, so horizontal distance d1 is equal to मीन्स अभी क्या करेंगे, दो डिस्टेंस मतलब मिडल पार्ट में फर्स्ट M टू P स्टेशन तक का डिस्टेंस निकालेंगे एंड सेकेंड M टू Q डिस्टेंस तक का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे. नाउ फ्रॉम स्टेशन M टू स्टेशन P D इज इक्वल टू F अपॉन I S1 cos square theta 1 plus F plus D cos theta 1. Okay, now here see M to P तक का डिस्टेंस हम लोग फर्स्ट निकालेंगे. ओके, सो रीडिंग कितना है वर्टिकल डिस्टेंस का, F अपॉन I तो गिवन है 100, F प्लस D कितना गिवन है 0.2. नाउ फर्स्ट S1 गिवन है 2.35 एंड थीटा 1 गिवन है 8 डिग्री 36 मिनट्स. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे D इज इक्वल टू F अपॉन I इज 100, S1 इज डायरेक्टली गिवन 2.35 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो एंगल है वह कितना है, फर्स्ट एंगल 8 डिग्री 36 मिनट प्लस एडिटिव कांस्टेंट इज ऑल्सो गिवन हियर 0.2 कॉस 8 डिग्री 36 मिनट्स. ओके, नाउ ये हम लोग को क्या करना है, कैल्सी में सॉल्व करना है. 100 इंटू 2.35 इंटू भी कॉस स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखना है आपको, कॉस 8 डिग्री 36 मिनट्स द स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू अगेन कॉस का जो टर्म है ब्रैकेट में लिखना है, कॉस 8 डिग्री 36 मिनट्स. सो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिला, 229.94 मीटर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टिल M टू P. ओके, हम लोग को टोटल P Q तक का डिस्टेंस पूछा है. सो हम लोग फर्स्ट पार्ट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. नाउ अभी वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, F अपॉन I S1 साइन 2 थीटा 1 अपॉन 2 प्लस 0.2 साइन थीटा 1. ओके, नाउ ये वर्टिकल डिस्टेंस देखो, हम लोग को अभी क्या, हम लोग ने फर्स्ट M टू P का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकला, अभी क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकलना. वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप टू द मिडिल क्रॉस हेयर तक का जो स्टाफ पे रीडिंग है उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस. सो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर्मूला है F अपॉन I that is multiplying constant is given, stadia intercept is directly given. Okay, 2.35 sin 2 theta 1 2 थीटा कितना है फर्स्ट केस के लिए 8 डिग्री 36 मिनट्स अपॉन 2 प्लस 0.2 साइन 8 डिग्री 36 मिनट्स. नाउ हम लोग को क्या करना है, ये कैल्सी में सॉल्व करना है. पहले हम लोग 2 इंटू 8 डिग्री 36 मिनट्स क्या करते हैं, निकाल लेते कि कितना एंगल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है देखते हैं, कितना एंगल है 70 डिग्री 12 मिनट्स. सो डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे 70 डिग्री 12 मिनट्स पुट किया. सो हम लोग क्या करते हैं, कैल्सी में ये कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, 100 इंटू 2.35 इंटू
साइन कितना है टोटल एंगल 17 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइड बाय 2 प्लस कितना है 0.2 इंटू साइन 8 डिग्री 36 मिनट्स। तो हम लोग को डिस्टेंस मिला, वर्टिकल डिस्टेंस V1 इज 34.775 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेशन Q। स्टेशन P का ऑब्जर्वेशन पे हम लोग ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइंड आउट किया। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सिमिलर वे से। ओके, फ्रॉम स्टेशन M to Q। ओके, फ्रॉम स्टेशन M to Q तो हम लोग फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड देन फ्रॉम स्टेशन M to Q का वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज V2 फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं, D इज इक्वल टू F/I इंटू S2 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस F प्लस D cos थीटा 2। Okay, so D2 is equal to F/I is given, that is 100 into S is directly given, okay, 2.055 cos square theta 2। Now second केस के लिए थीटा कितना गिवन है 6 डिग्री 36 मिनट्स प्लस एडिटिव कांस्टेंट इज गिवन 0.2 इंटू cos थीटा 2। थीटा 2 कितना है 6 डिग्री 36 मिनट्स। नाउ कैल्सी में सेम वे है, हम लोग को पुट करना है 100 इंटू 2.055 इंटू कॉस स्क्वायर के लिए ऑलवेज ब्रैकेट में कॉस 6 डिग्री 36 मिनट्स एंड आफ्टर क्लोजिंग ब्रैकेट आपको क्या करना है स्क्वायर का बटन प्रेस करना है प्लस 0.2 इंटू अगेन ब्रैकेट cos 6 डिग्री 36 मिनट्स। नाउ हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस M to Q का मिला है 202.983 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है F/I इंटू S2 साइन 2 थीटा 2 अपॉन 2 प्लस 0.2 साइन थीटा 2। ओके, नाउ सिमिलर वे जैसे हम लोग ने प्रीवियस में V1 निकाला, सिमिलरली हम लोग को क्या करना है V2 निकालना है। सो F/I इज 100 इंटू S2 इज 2.055 इंटू साइन 2 थीटा 2 इज गिवन 6 डिग्री 36 मिनट्स अपॉन 2 प्लस 0.2 इंटू साइन थीटा 2 इज 6 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, नाउ बी 6 डिग्री 36 मिनट्स का इंटू 2 करना है और टोटल एंगल कितना आ रहा है देखना है 6 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, सो टोटल एंगल इज 13 डिग्री 12 मिनट्स। ओके, सो कैल्सी में हम लोग को पूरा इक्वेशन डालना है 100 इंटू 2 इंटू 2.055 इंटू ब्रैकेट साइन 13 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, प्लस 0.2 इंटू साइन इन ब्रैकेट साइन 6 डिग्री 36 मिनट्स। सो वर्टिकल डिस्टेंस इज 23.48 मीटर। ना अभी क्या करना है हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है टोटल डिस्टेंस PQ का। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे ये जो टोटल डिस्टेंस है P एंड Q तक का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, बिकॉज हम लोग ने दो सेक्शन में निकाला है MP एंड MQ। सो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है D1 एंड D2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है D1 229.940 प्लस 229.940
202.983 को ऐड करके। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 432.923। ये हम लोग का फर्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं वो मिला। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोग को कि एक तो डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड आर एल ऑफ स्टेशन क्यू। ओके, स्टेशन क्यू का यहाँ पे आर एल कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगने वाली है, बिकॉज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अभी ये ध्यान से देखो, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये आर एल ऑफ क्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए फर्स्ट तो इंस्ट्रूमेंट कितने हाइट पे रखा है ग्राउंड लेवल से वो फाइंड आउट करना है। सो आर एल ऑफ पी इज गिवन, कितना है 420.00 मीटर। आर एल ऑफ पॉइंट पी इज गिवन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? सो ये इधर तक का डिस्टेंस है कितना 420। ओके, सो इसमें हम लोग मिडल, कभी भी हम लोग H1 जो मिडल एक्सिस हेयर है, मिडल एक्सियल हेयर है, वो ऐड करेंगे। सो कितना हुआ आर एल प्लस 2.105 मीन्स यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस मिला। कॉज V1 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप टू मिडल एक्सियल हेयर रीडिंग। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, ये टोटल ऐड करना है 420 प्लस 2.105 भी इधर तक, यहाँ पे कितना आ रहा है डिस्टेंस वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस हम लोग को क्या करना पड़ेगा H1 मीन्स देखो यहाँ पे आर एल ऑफ पी, ओके, प्लस H1 माइनस V1। सो आर एल ऑफ पी कितना किया है 420 प्लस क्या करना है, देखो यहाँ पे H1 प्लस H1 कॉस यहाँ पे टिल वर्टिकल डिस्टेंस तक कहाँ का रीडिंग है, मिडल एक्सियल हेयर का रीडिंग है। सो H1 ऐड किया तो हम लोग को ये टोटल मिला डिस्टेंस। टोटल में से डायरेक्टली V1 माइनस करेंगे तो हम लोग को ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट मिलेगा। सो कितना है, माइनस V1 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 387.330 मीटर। ये क्या मिला हम लोग को, टिल ग्राउंड लेवल से ये एक्सियल हेयर का रीडिंग मिला। कितना है ये, ओके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड से कितने लेवल पे है तो 387.330 मीटर पे। ये ग्राउंड से लेके मिडल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस वो कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है 387.330 मीटर पे। भी क्या निकालना है, आर एल ऑफ क्यू। ओके, आर एल ऑफ हम लोग को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। ओके, तो आर एल ऑफ क्यू कैसे निकालोगे, भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला है, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक ही होता है। सो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो हम लोग को मिला है वो प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, HI प्लस V2 माइनस H2। ओके, यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है V2 और ग्राउंड तक का डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये और ये ऐड किया तो उसके बाद अगर H2 माइनस करते तो तभी ही हम लोग को ये ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा। सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V2 माइनस H2। ओके, सो अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को 408.92 मीटर हम लोग को आर एल ऑफ क्यू मिलता है। अभी ये सब जो है आप लोगों को हर एक केस में सिचुएशन अलग होगा, तो जो डायग्राम है वो प्रॉपरली आप लोग को समझ के लेना है कि डिस्टेंस कैसे होते हैं। V का डिस्टेंस क्या होता है, मिडल एक्सियल हेयर से लेके हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर और टेलीस्कोप बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। H1 कहाँ से होता है, ग्राउंड से लेके मिडल एक्सियल हेयर तक का डिस्टेंस होता है। तो जैसे भी केस चेंज होता रहेगा वैसे आप लोग को H1 और V1 जो है वो प्लस माइनस करना पड़ेगा। और RL क्या होता है, ग्राउंड पे जितना हाइट है मीन से सी लेवल से
ग्राउंड पे कितना हाइट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। सो ये RL हम लोग ने पहले बेसिक सर्वे में भी फाइंड आउट किया है, सेम उसी तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, और दो टाइप के न्यूमेरिकल है, मतलब सेकेंड केस के ही, टाइप 2 के ही और दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग को जब भी इंक्लाइन रहेगा तभी क्या करना है। अभी ये क्या है, दोनों अब इंक्लिनेशन पे है एंगल। सो जब एक एंगल हाइट पे मीन्स प्लस पे रहेगा वर्टिकल एंगल, तो एक माइनस पे रहेगा, दोनों माइनस पे रहेंगे एंगल, तो भी क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू। और किसी को भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे डाउट सेशन में पूछो। ये थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप लोग मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, तो हम लोग एक ऑनलाइन लेक्चर में भी हम लोग ये पूरा एक्सप्लेनेशन, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। थैंक यू एवरीवन।